There are multiple compilations available on YouTube that shed light on Indian plagiarism of Pakistani songs. This video shall focus on plagiarism by the Pakistani industry, specifically from the so-called golden period of the film industry. Plagiarism. The process or practice of using another person's ideas or work and pretending that it is your own. No credit given to original, copying verbatim. Inspiration. Deriving stimulation from another person's work and adding one's own value to it, creating something markedly unique. Credit given to original. Plagiarism should be condemned regardless of who commits the act. In many such compilations, people often present various excuses in the comments section. However, credit should always be given to the original artists. First, here's a quick the vocabulary lesson, words for plagiarism. अरबी ज़बान से लफ्ज़ इंतिहाल है और सरका, जिसको अक्सर अफराद सरका कहते हैं। फ़ारसी ज़बान से माखूज़ लफ्ज़ चरबा है। Words for plagiarist. मुंतहिल और सारिक, Words for plagiarized. मुंतहल और मसरूक़ा। A few categories are songs based on the previous work prior to independence of composers, lyricists, and artists. Songs based on the same rag. Songs based on folk songs. Songs based on poetry written in the same meter, rhyme, etc. Songs based on classical music. From the perspective of poetry, ghazals written in the same wazn, bahar, etc., they can usually all fit into the same melody. For an example, please listen to the ghazals in the following short. All three were recorded for Pakistan television. मुझे सोचता कोई और। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। चली जाती है हमसे और उनसे वही बात चली जाती है। Composers निसार बज़मी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, नशाद, इनायत हुसैन, G.A. चिश्ती, गुलाम हैदर। Lyricists तनवीर नकवी, शेवन रज़वी। आर्टिस्ट्स रोशन आरा बेगम, नूर जहां, रतन कुमार, स्वर्ण लता, आशा पौसले।
Prior to the formation of Pakistan, Khaja Khurshid Anwar worked in Bombay, an example of which shall be presented. He recorded Shabnam Kyun Neer Bahaye in Shamshad Begum's voice for Ishara in 1943. and later recorded the same melody with different lyrics in the voice of Noor Jahan for the Pakistani film Salam-e-Mohabbat 1971. जीवन भर का रोग है मेरा, कौन से समझाए। शबनम क्यों नीर बहाए, शबनम क्यों नीर बहाए। Nisar Bazmi had done some work in Bollywood prior to migrating to Pakistan, from which an example shall be presented. He recorded Balamwa Bade Nadan in Lata Mangeshkar's voice, the tune of which he reused in Pakistani film Anjuman by recording Nainwa Chalaye Baan in Noor Jahan's voice. बलम जी बड़े नादान, बलम जी बड़े नादान, दर्द मेरा जाने ना जाने ना। नयन बतलाए बान, नयन बतलाए बान, किसी को पहचाने ना जाने ना। नयन बतलाए बान, कुछ रुकते रुकते कह भी दिया, कुछ कहते कहते रह भी गए और कह भी गए, कुछ कह भी गए हो कुछ भी न कहा, कुछ भी न कहा और कह भी गए कि कुछ कहते कहते रह भी गए। कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। The Pakistani film was released in July, whereas the Indian film was released in October 1970. Is this a case of plagiarism or the songs being based on the same rag? लग रही है मुझे आज सारी फजा, अजनबी अजनबी अजनबी, लड़खड़ाते कदम दे रहे हैं सदा, बेखुदी बेखुदी बेखुदी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सब दाग दिल चराग बना के जला दिए, आज के हमने प्यार के सामा सजा दिए। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। Was Mother Mohan's composition copied from that of Master Inayat Husain's composition, or is the similarity due to the fact that both songs are composed in Rag Pahadi? हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से।
The overall poetic theme of Noorjahan's song written by Masroor Anwar seems similar to Lata Mangeshkar's song written by Raja Mehdi Ali Khan. Would this be considered inspiration or plagiarism? आखिरी बात है, अब बात न होगी शायद, आज के बाद मुलाकात न होगी शायद. The Pakistani film was released before the Indian film. Is this a case of plagiarism, the songs being based on the same rag, or mere coincidence? चंदा के हिंडोले में उड़ने खटोले में अम्मी का दुलारा अब्बू जी का प्यारा सोए नींदिया छुलाए तुझे सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी थी गुड़िया लाला गुड़िया चाहे लाला पप्पा जल्दी आ जाना. The lyrics use of Aage Aage and Piche Piche in Nahid Akhtar's song and later recorded Lata Mangeshkar's song seem to perhaps be a case of inspiration. Is the similarity between Chhap Tilak by Amir Khusraw and Hi Logon Ne by Naushad due to plagiarism, or would Amir Khusraw's composition be considered the original? Ratan Kumar and his wife Swarnalata were both acting in Bombay prior to independence from Britain. After migrating to Pakistan, they both starred in and produced multiple films, some of which were remakes of their pre-partition films. Bedari was one such film. The government of Pakistan banned this film due to it being plagiarized from the Indian film Jagrati. बहुत मोहतबर नाम हमारी इंडस्ट्री का. पुरानी फिल्में अगर आप आजकल बहुत दोबारा मार्केट में आ रही है, अखियां मिला के जिया वो माँ के चले नहीं जाना. सावन के बाद दो ये रतन फिल्म है. उसके बाद और बहुत फिल्में, शरी बाबू, हीर, लंबी फहरिस्त है. आपकी खिदमत में एनजीएम की जानिब से मोहतरमा सोनलता. सिंपल से बादरवा मस्त हवाएं आए पिया घर आजा पिया घर आजा. हालात जो है इंडस्ट्री के वो जमाने के साथ बदलते रहते हैं और बल्कि अच्छी होता है. मतलब जो माहौल है वही फिल्में बनती हैं. सारी फिल्में अलग तो नहीं बन सकती. तो जब हम बुजुर्गों से पूछते हैं, बड़े लोगों से पूछते हैं, बड़े नामों से कि आजकल की फिल्मों के बारे में, तो कुछ उनका मूड बदल जाता है. तो आप बताएं कि क्या मतलब उनकी मजबूरी नहीं है, फिल्में जैसे बाहर हो रहा है वही फिल्मों में हो रहा है, तो क्या करेंगे लोग? मतलब ऐसी फिल्में बनाएं या कुछ बदलें या आपको पसंद नहीं है? हाँ, मेरा ख्याल है बदलना चाहिए. बदलना चाहिए जी. हमारा ट्रेंड बदलना चाहिए. हमें आजकल के नौजवानों के लिए फिल्में बनानी चाहिए, बच्चों के लिए बनानी चाहिए. कोई बात नहीं है, रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है. जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं, हर एक के लिए रिस्क है. हमने बिल्कुल ही लोगों का जहन बदल दिया फिल्मों से. अब वो हमारे ज़माने में जो अच्छी साफ़ सुथरी फिल्में बनती थी वो भी चलती थी, ऐसी तो कोई बात नहीं है. बल्कि हमारी फिल्में शुरू में जो हमने बनाई हैं, इंडिया की फिल्में साथ लगती थी, दिलीप की लगती थी, मधुबाला की लगती थी, लेकिन हम कभी घबराते नहीं थे कि हमारी फिल्म नहीं चलेगी जी, ये इंडिया की फिल्म आ गई है. चलती थी और बड़ी अच्छी चलती. मिसाल सामने साथी बैठी हुई, इंतजार, कोयल, क्या? हाँ, वही तो कह रही हूँ कि साफ सुथरी. तो क्यों नहीं हम बना सकते? इसलिए नहीं बना सकते कि वो टीम वर्क नहीं रहा, हमारे यहाँ एका नहीं रहा. वो हम लोग वी यूज्ड टू वर्क लाइक ए फैमिली. इकट्ठे बैठना, इकट्ठे हर चीज़ को डिस्कस करना. अगर स्टोरी है तो सब बैठ के अभी ऐसी काम होता है तो फैमिली बाद में बन जाती है. लेकिन मेरा तो ख्याल है कि मैंने पहले भी एक दो प्रोग्राम में यही कहा है कि हमें अपना ट्रेंड बदलना चाहिए. क्यों भाई नूरजहां? सही फरमा रही है, वो हमसे सीनियर है. जी जी. जब हम बॉम्बे गए हैं तो हमने इनकी इज्जत उस वक्त भी की कि ये पहले काम कर रहे थे. हम काफी भाई तुम गाने में थी, मैं काम में थी. तो तुम काम में आ गई और हम तो उसी के फिर रिटायर हो गए. आप तो चली आई. सलाम करने के लिए आपने बताया. समझती हूँ कि हमें, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें मैं नहीं होनी चाहिए. जो हमसे ऐसे लोग हैं, हमको मेरा फर्ज है मैं उसके सलाम करूँ. सही बात है. और ये भी हो सकता था कि जहाँ थी तो मैं कहती ये मैं नहीं जानती, मुझे अंदर सिखाया गया. नहीं तो ये पहले लोगों में नहीं है ना ये चीज़. अब नहीं. अब जो है ना, अब तो देखिए ना, माफ कीजिएगा, एक नया आर्टिस्ट आता है, वो स्टूडियो में इस तरह आता है, पहली ही फिल्म में
कि मेरा ख्याल मतलब ये जो मार्केट है अब जो रिसाले टीवी अखबार रंगीन तस्वीरें ये भी जो है ना एक बहुत ही प्रमोशन मिलता है हमको बिल्कुल इनका कसूर नहीं है ये एक लोगों का है बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल पहले ऐसा होता था, अभी भी हमें कहने का तो कोई हक नहीं, ये लोग नए लोग भी बैठे हैं, नीति है सभी, ये ना अपनी तरफ कोई ना समझे, मगर जैसे कि कोई पिक्चर बाहर जाती है तो उसमें ऐसी कोई बच्ची भेज दी जाए, ऐसे आर्टिस्ट चले जाए जिन्होंने 2 ही पिक्चरें बनाई और अल्लाह ने इज्जत दे दी, तो हमारे देखिए ना उन लोगों को भी तो पूछिए ना जो उन्हें भिजवाते थे, बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने सारी उम्र मर गए गाते गाते या सारी उम्र खत्म हो गए काम करते करते, उन आर्टिस्टों को क्यों भेजा जाता, हालांकि हमारे पास फुर्सत नहीं और हमें जाने का शौक भी नहीं, इतना हम घूमे हैं पल्ले से अपने, हमें तो कोई शौक ही नहीं रहा, मगर जहाँ तक इज्जत का सवाल है वहाँ तो देखिए ना पलड़ा तोड़ना पड़ता है ना, कि देखिए इन्होंने अरे 2 पिक्चर बनाए, अल्लाह ताला सबको दे, उन्होंने एक पिक्चर के बाद अगर होंडा अकॉर्ड दे दी या होंडा अल्लाह उनको इससे ज्यादा दे, तो ये नहीं मेरा मकसद कि एक होंडा अकॉर्ड से आप कुछ मास्को भेजा जाए, क्यों भाई होंडा अकॉर्ड भी सैर करो, मास्को तो ना जाओ, कुछ नहीं कर सकते। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे अजनारी जी तरफ से मैंने बताया दूसरी मंत्र तो नागमणि ये जो है हमें जो कन्वे हुआ कि एक गाना एसटी बर्मन साहब ने उस तरफ बनाया था, तो उसके जवाब में मैं इनकी ये तकलीफ करता एक ही तो निसार रजनी साहब मैं इस पर उन्होंने जब कोई गाना वहां सुना, शायद रंगीला रे था या कोई रंगीला रे था, उन्होंने मुझे ये बताया था इस बारे में कि वो ना रंगीला रे ये कॉल है, सदा है, तो इस सदा से इंस्पायर हुए वो, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से ऑगमेंटेड स्केल के अंदर साजना, ये ऑगमेंटेड कॉर्ड है जी, साजना, हां देखिए सा गा धा धा नी सा नी दा प म ग रे नी दा सा गा धा साजना रे सा रे नी सा नी दा प म रे साजना रे ए सा गा धा सा नी दा प दा प ग रे सा वाह वाह गा रे सा गा जिया तर से नैना बर से रे पा म दुखी मन तुझको पुकार दा प म बिन देखे गा रे सा गा ओ मेरे वाह पा गा रे सा नी दा प म गा, ये इसकी नोटेशन इसकी थी साजना रे पंचम पे आ गई ए दा प गा रे सा ए जिया तर से गा रे सा गा नैना बर से गा रे सा गा दुखी मन सा पा म दा प म तुझको पुकार, इसका जो अंतर था ये कॉर्ड के मबनी था, कॉर्ड से ही शुरू हुआ और कॉर्ड ही इसमें रिलेटिव कॉर्ड्स खेले जा रहे हैं, पूरा गाना इसमें बना सकता नूर जहां साहिबा को जब बताई याद आपने भाई जी यही तो बताने वाली बात थी, ये कितनी देर में उन्होंने डाइजेस्ट की या कंसीव की? आधे घंटे में याद की उन्होंने, वो भी तो नूर जहां थी, आधे घंटे में याद की और गाना करीब 8 घंटे में रिकॉर्ड हुआ था। कितने? 8 घंटे मैं मौजूद था 8 घंटे। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं, कैसे मैं भुलाऊं, पत्थर बन गए प्यार में कब तक अपना दर्द छुपाऊं, दिल कैसे मैं भुलाऊं। जब तक सांसों का रिश्ता है बाकी, जब तक दिल में है धड़कन साथी, प्यार किए जा प्यार किए जा प्यार किए जा प्यार किए जा, जब तक सांसों का रिश्ता है बाकी,
जब तक दिल में है धड़कन साथी प्यार किए जा, प्यार किए जा, प्यार किए जा, प्यार किए जा। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली दिल दीवाना दिल, ना जाने क्यों धड़कता रहता है। दिल दीवाना दिल, ना जाने क्यों धड़कता रहता है। चलो जी अड्डे टप्पा लाइन, चलो जी दिल अपना बहलाए, के मौसम रंग रंगीला गया। Now that the potentially confusing categories have been covered, let's look at songs that appear to be clear examples of plagiarism. If any of these sound similar due to be based on the same rag, then clarification would be appreciated. रह रह के हंसा है मेरी हालत पे जमाना, क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना, क्या दुख है मुझे ये तो किसी ने भी न जाना। खामोश खामोश मोहब्बत लिए फिरता ही रहा हूँ मैं, जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। तकदीर किसी को भी बुरे दिन दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। क्या प्यार भी दौलत का तलबदार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। The overall melody seems similar. Is this due to being composed in the same rag? तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। हवा से मोती बरस रहे हैं, सजा तराने सुना रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। वो हमारे दिल के अरमां हो गए, पहले जान फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता 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 वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन बजाए बांसुरिया, सुन बंजली दी मिठड़ी कान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। तन तो प्यारू मन तो प्यारू, बिगड़ी बना दे तो है रो रो पुकारू। ठंडी हवाएं लहरा के आए,
दम मारो दम मिट जाए हम जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ तुझे चाहे क्यों ना नहीं इकरार कर लूं तरसता है ये दिल तुझे प्यार कर लूं लकीरें नहीं ये धुएं की ये अरमान है दिल जलों के हमें मतलबी इस जहां से मिला क्या सिवा नफरतों के शौक हर रंग रकीब सरो सामान निकला कैस तस्वीर के पर्दे में भी उड़ियां निकला हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात हमको जीने के लिए सिर्फ मिली एक ही रात साथ तेरे जो गुजरती तो बहुत थी यही रात नीले गगन के तले धरती का प्यार पले ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें ऐसे ही शाम ढले मस्ती में झूमे फजा गीत सुनाए हवा अपनी ही धुन में अलबेला राही मंजिल की ओर चला न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो मेरा ख्याल हो तुम मेरी आरज़ू तुम हो मेरा ख्याल हो तुम मेरी आरज़ू तुम हो मेरी निगाह तमन्ना की जुस्तजू तुम हो मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए तबाही तो हमारे दिल पे आई आप क्यों रोए कहा आँखों से हाल अपना तो तुमने क्यों
था मंजिल पे साथी छूट गया किस्मत ये बता मेरी क्या है खता सुख चैन मेरा क्यों लूट लिया मेरा प्यार भरा संसार लुटा तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई खता बख्श दो गर खता हो गई हमारा इरादा तो कुछ भी न था तुम्हारी खता खुद सजा हो गई कल भी तुमसे प्यार था मुझको तुमसे मोहब्बत आज भी है कल की तरह इस दिल पे तुम्हारी नजरे इनायत आज भी है कल भी तुमसे प्यार था मुझको तुमसे मोहब्बत आज भी है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है मोहब्बत ऐसा जज्बा है कभी जो कम नहीं होता मोहब्बत करने वालों को जहाँ का गम नहीं होता अरे जो प्यार करते हैं वो कब दुनिया से डरते हैं चाहे हमें तुम ठुकरा दो देखा है आंखें मलते मलते फूल ही फूल जिंदगी बहार है तय कर लिया आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है किसने तोड़ा है दिल हुजूर का किसने ठुकराया तेरा प्यार हो पत्थर दिल दुनिया दुश्मन प्यार ने किस पे किया था एतबार हो किसने तोड़ा है दिल हुजूर का शाम का ढलता हुआ साया खुशियों का पैगाम लाया न तुम हमें जाने न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया न हम तुमसे जुदा हैं न तुम हमसे जुदा हो रसाई हो गई है रसाई हो गई है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया प्यार ना करना ये दिल कहता रहा कहने दिया चुन लिया मैंने तुझे The overall melody seems similar. Is this due to being composed in the same rag? दिन मुबारक बाद उसने दिल हमारा तोड़ गया शुक्रिया इस दिल लगे हम कैसे
overall melody seems similar. Is this due to being composed in the same rag? ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से मैंने आस हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी नाराज हूँ। चपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। मुंडिया 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 दुपट्टा छाड़ मेरा, मैं शर्मादा कुंड लाईदा, हाय वो इंज नहीं सताना चाहिदा। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। तुम संग लेना लागे, माने ना ही जिया, पिया पिया बोले पिया, मन का पपीहा। मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। ओ मेरा तुझसे ऐसा बंधन है, जैसे दिल से रिश्ता धड़कन का, जैसे धरती से नाता सावन का हो। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे महबूब का आया है मुहब्बतनामा, वो खुशी दिल को मिली है कि बता भी न सकूं, और इस प्यार के जज्बे को छुपा भी न सकूं। मेरे महबूब का उससे क्या शिकवा, उससे क्या शिकवा, जिसे पास शनासाई नहीं, क्यों आ जाए, क्यों आ जाए, जहाँ सूरत सुनवाई नहीं।
वो दिन मेरी निगाहों में, वो यादें मेरी आहों में, ये दिल अब तक भटकता है तेरी उल्फत की राहों में। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। न घर से निकलना यूं जुल्फें बिखेरे, अंधेरों में छुपने लगेंगे सवेरे। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। Please note the use of the same lyrics in the Indian film wouldn't be considered plagiarism because in this particular case, the original lyricist Katil Shifai was given credit. He is said to have provided permission for multiple songs of his originally written for Pakistani films to later be used in Indian films as well. कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। This is an interesting case where the lyrics have been plagiarized from an already plagiarized song. मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। आऊंगा वादे में मैं भी निभाऊंगी प्यार की रस्में। मैंने जो कहा है तुमने जो सुना है।
ना भुलाऊंगा वादे कसमें, मैं भी निभाऊंगी प्यार की रस्में, मैंने जो कहा तुमने वो सुना है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। प्यार के नगमे किसने छेड़े मैं तो खो गई, बहुत रोका था दिल ने फिर भी उनकी हो गई। ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, ठाड़े रहियो हो बाकी यार रे, ठाड़े रहियो। ये मुलाकात फिर आई है बड़ी देर के बाद, खड़े रहियो मेरे दिलदार हो, खड़े रहियो, खड़े रहियो, खड़े रहियो, खड़े रहियो रे, आके जई हो, आके जई हो, कहाँ सरकार हो, खड़े रहियो। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो। This is a case where a small portion of the melody has been copied, but the songs are otherwise completely different. Therefore, this could probably be called inspiration or sampling instead of plagiarism. This is a case where a small portion of the melody has been copied, but the songs are otherwise completely different. Therefore, this could probably be called inspiration or sampling instead of plagiarism. तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। ए भाई, ए मिस्टर, कुछ सोच समझ कर बात करो। ए भाई, ए मिस्टर, This is a case where a small portion of the melody has been copied, but the songs are otherwise completely different. Therefore, this could probably be called inspiration or sampling instead of plagiarism. अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो। पुकारा जब चले आए, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम,
जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला। अपनी किस्मत पे हमको बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। सुनरी पवन, सुनरी पवन, पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अकेली, तू सहेली मेरी बन जा। अकेली पवन, पागली पवन, तू ही बता पगली पवन, किसके लिए जले मेरा मन। तू ही बता पगली पवन, किसके लिए जले मेरा मन। मुझको सता के चैन चुरा के कहाँ गया मेरा भोला सजन। The poetry here is not exactly the same, but is similar enough to seem inspired. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। सब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया सब चुप रहती है। पायल में गीत है चम चम के, 2 लाख चलेरी पूरी थम थम के। पायल में गीत है चम चम के। The poetry here is not exactly the same, but is similar enough to seem inspired. जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्दे दिल लिया करते हैं। खुशी जग हमें तो क्यों लोग शिकायत करते हैं, क्यों लोग शिकायत करते हैं। हमें सजाती है आंसू, हर दिल में कयामत आती है, तो क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों लोग मोहब्बत करते हैं। Here as well, जाने क्यों करते हैं has been used. जाने क्यों इंतजार करते हैं, हम के साथ साथ जलते हैं। तेरी यादें हमें सताती हैं, तेरी यादें हमें सताती हैं। तेरे गम आंसुओं में ढलते हैं। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। हाय अगर बढ़ गई मेरी बेताबिए दिल,
कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, हाय अगर मैं बता दूं। This is an interesting case where the lyrics have been plagiarized from an already plagiarized song. अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। The Pakistani Songs tune was plagiarized first by Shankar J. Kishan in 1987 with lyrics that were different. Next, that song was copied by Bapi Lahiri in 1990. Finally, those plagiarized versions were copied again in a Pakistani film and coincidentally also sung by Noor Jahan. Yeah, both Pakistani melodies by music director Nashad seem inspired by the Indian song's tune. Interestingly, the lyrics of Mehdi Hasan's famous filmi ghazal penned by Katil Shifai were later copied by Sair Ludhianvi. एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। उसकी बज़्म में जाने क्या क्या कसते हैं आवाज़े लोग, आँख मिलाकर बंद कर लेते हैं दिल के दरवाजे लोग। Interesting fact, the actor seen on screen, Jamil, is said to be Indian actress Tabu's father. He appeared in Pakistani films like Saza, Garnata and Yaman. Later he worked in an Indian film as well. Despite being different from the trending heroes in Pakistani and Indian films at the time, he unfortunately didn't gain much popularity. Not only can one see a resemblance in the father and daughter's physical appearance, but their acting and dialogue delivery also seems similar in certain instances. जब चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। जब भी जीता है नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। The following Indian song and two Pakistani songs all seem inspired to plagiarize from this English song by Jim Reeves. I promise you'll never know that once we loved each other so. अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। गिर न जाए हम थाम ले सनम,
चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जगवालो मुझे दोष न देना जगवालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी जो तुमको हो पसंद वही बात है ये तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात है जो तुझे पसंद आए वही रूप मैं बना लूं मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं जो तुझे पसंद
hand in hand. There's a plethora of such examples both from Pakistani and Indian films. This makes one wonder if anything was original or are all melodies copies of each other to a certain extent. Share other examples in the comment section. Thanks, please like and subscribe. कतील साहब आपने 14 मजमूए लिखे और इसके साथ साथ फिल्म के मीडियम ने भी आपको एक शनाख्त दी तो आप ये बताइए कि ये जो फिल्म के जरिए आपकी शनाख्त है इसने आपकी अदबी साख को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने फिल्म में भी उतना ही लगन से काम किया है जितना अदब के लिए, खालिस अदब के लिए। नुकसान सिर्फ ये पहुंचा है कि कोई शख्स मुझे गाली देना चाहे तो वो मुझे फिल्मी शायर कह के गाली देता है, बस ये नुकसान है। हालांकि मेरी फिल्मी शायरी बहुत से लोगों की जनरल शायरी से बेहतर। ये बताइए कतील साहब के मौसीकी का शायरी को मकबूल बनाने में क्या हिस्सा है? सब ये सवाल थोड़ा सा यूँ भी किया जा सकता है कि शायरी मौसीकी को मकबूल बनाने में क्या रोल अदा कर सकती है। तो मेरे ख्याल है कि अच्छी शायरी ने हमेशा शायरी मौसीकी को मकबूल कराया। यानी बुनियादी तौर पर शायरी का अच्छा होना जरूरी बुनियादी तौर पर शायरी जब तक शेर अच्छा नहीं होगा, गाने वाला आ करता जाए, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। आज जो आपका गीत यहाँ पे सुनाया जा रहा है ये गालिबन कौन सी फिल्म का है? ये इश्क़ लगा का गीत है। अच्छा, और ये नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये गीत 37 बरस पहले रिकॉर्ड हुआ था और आप भी जानते हैं कि ये आज भी उसी तरह तरताज़ा है। लफ्ज़ों की अहमियत जो है उनको कहाँ तक, यानी आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी राय इसमें ज़्यादा अहम होगी कि लफ्ज़ कहाँ तक अहम है जहाँ तक के गाने का ताल्लुक। मेरा ख्याल है कि अल्फाज का बहुत हाथ है। अच्छे अल्फाज हों तो गाने वाला इंस्पायर होता है, जज्बात को अच्छे अल्फाज उकसाते हैं और गाने के अपने भी कुछ आदाब हैं। शायरी का भी, अगर शायरी अच्छी ना हो तो मैं समझती हूँ गाना गाने वाले को वो गाना अधूरा सा, मुझे तो अधूरा महसूस होता है। आप तो भी माशाल्लाह इतना प्यारा गाते हैं जो मेरे सिवा बहुत कम लोग गाते हैं। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि गाने के अपने आदाब होते हैं, खासतौर से जब आप गज़ल गाती हैं तो गज़ल में आपकी गायकी जो है वो उस आदाब को बड़ी मलहूज़ नज़र रखती है। होना चाहिए। गायकी तो अल्फाज को निखारती है और उन पर अल्फाज से गायकी को हावी नहीं हो जाना चाहिए कि वो बिल्कुल यही हमने देखा लेकिन जब भी कोई भी आता नया या मैं भी नहीं थी और भी जो आर्टिस्ट हैं वो भी नए होते तो मेरा ख्याल है मेहनत करना नहीं चाहते और जब तक मेहनत नहीं होगी तो कुछ नहीं। और यही वजह कि पहले जो हमारी मूवीज थी वो ज्यादा अच्छी थी और अब इतनी अच्छी नहीं बन रही जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो आप एक बार एडमिट करती हैं कि जैसे पहले हमारे यहाँ फिल्में बनती थी। जी, यही वजह मैंने कहा शराफत से एक तरफ हो जाना बेहतर है। तो एक खुदा ने एक जो मकाम दिया हुआ है थोड़ा बहुत वो कायम रहे तो बेहतर है। बाकी नहीं बिल्कुल उसकी वजह कामयाबी की वो गाना तो नहीं था। सयोनी मेरा माही, सयोनी मेरा माही पे बड़ी मेहनत की मैंने। लाहौर में म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर बहुत बिजी थे, मैं उन्हें खास तौर पर कराची लाया, होटल में ठहराया ताकि वो बिल्कुल सुकून से हों और बैठ के मेरे गाने बनाएं। अच्छा, एक बात थी कि आप अपने गानों पे बड़ी मेहनत करते थे कि बाकी फिल्में आपकी चली नहीं, फेल हो गई, मगर उनके गाने जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। इशारा, समंदर, नसीब अपना अपना। अब ये शायद मेरा शौक है कि म्यूजिक की तरफ मेरा थोड़ा बहुत रुझान है, कुछ पसंद है कि होता ही है कि फिल्म मेरी जो ना भी चले ना उसका गाना ठीक ही चलता है। अच्छा, किसी बाहर के मुल्क की फिल्म में काम करने का शौक है आपको? जी क्यों नहीं, तो वहाँ शायद एमए काम आ जाए। मगर एक अंदाजे के मुताबिक हमें किसी ने बताया कि आपने तो बहुत 15-20 फिल्मों में काम किया बाहर के मुल्क की, तो बाद में मालूम हुआ कि बाहर की ये वो फिल्में हैं जो हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन हमें बाद में पता चला उस जमाने में इत्तेफाक से भी सीआर नहीं आया था तो लोग लाहौर से एक ही रोज में काबुल चले जाया करते थे। चंद प्रोड्यूसर ऐसे थे, फिल्म दिखाया करते थे और आके शुरू कर दिया करते थे। जब आधी हो जाती थी, पौनी हो जाती थी, तब हमें पता चलता था कि ये तो इंडिया की पुरानी फिल्म है। बल्कि आपको हैरत होगी कि एक प्रोड्यूसर ने अपने डायरेक्टर को भेजा, एक फिल्म थी राजा रानी इंडिया की और एक थी राजा जानी। राजा रानी बड़ी अच्छी फिल्म थी, राजा जानी बड़ी फजूल फिल्म थी। वो शख्स गया, उसने राजा रानी नहीं देखी, राजा जानी देख के उसकी स्क्रिप्ट लिखलाया, वो हमने बना ली और वो फिल्म शायद 2 रोज चली। आजकल पैसा उल्टा है, काबुल से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से तो कोई जाकर निकाल। आजकल का म्यूजिक ज्यादातर जो है वो तो अब मेरे ख्याल से वो इस तरह के कानों से ज्यादा ना आंखों से सुनने की शक्ल इख्तियार करता है। अब तो आंखों से सुनना पड़ता है। ये गाना तो पहले रूह की ग़िज़ा होता था, तो अब वो ग़िज़ा पता नहीं कैसी हो गई। अच्छा, तो ये एकेडमीज जो है ये पाकिस्तान में ऐसी हैं जो सिखाएं? ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं आज का जो फनकार जो है ये जो रातों रात जो स्टार बन जाने के नशे में मदहोश है, मैं ये समझती हूँ। तो इनको चाहिए कि आने वाला दिन भी देखें, उसको जरूर देखें कि उसने हमारी जो है क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इस फील्ड को आगे लॉन्ग टर्म ले जाने की, कितनी मेहनत दरकार है, अभी हम सुर में कितने हैं, लय में कितने कम या ज्यादा हैं, अदायगी क्या है, मेलोडी क्या है, पोएट्री क्या है। बस इन्होंने जो है जो आजकल है अपने इतना शोर किया हुआ है, म्यूजिक को इतना लाउड कर दिया है, तो इसमें अवाम खुश थे पहले, लेकिन अवाम अब जो है वो इतने खुश नहीं है। अब वो थोड़ा सा सुकून चाहते हैं। तो मौसीकी के जरिए कुछ फनकार मैं समझती हूँ कैसे हैं जो इस वक्त आवाम की जो सुनने वालों की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस वक्त मकसद में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये है कि शौक नहीं है और जिस गायकी की नाहिद आपने बात की है तो वाकई ये गायकी जो अब भी जो है ना दिलों में राज किए हुए है। रागदारियां होती हैं, लेकिन जो भी गाना कंपोज किया जाता है उसके पीछे एक राग होता है, उस गाने में एक राग की शक्ल होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो फिल्मी काम है ये सिचुएशनल काम होता है। इसमें ये अगर एक राग खराब हो गया है तो उसमें 3-4 राग उसमें मिक्स कर दिया या ऐसे इधर उधर से कुछ आप समझ रहे हैं वो थोड़ा सा काम कर लिया, तो उससे ये है कि वो एक चीज़ में जो एक मेलोडी और खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा रुझान यही है। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि एक हमारे जो फिल्म का डायरेक्टर है वो फिल्म जब बनाता है तो जहाँ वो उस फिल्म में 6 गाने होते हैं
तो मैं उनसे यही कहूंगी कि जहाँ 6 गाने आप कंपोज करवाते हैं तो वहाँ 5 गाने अपनी मर्जी के रख लें, सिचुएशनल जैसा काम है तो कम से कम एक गाना ऐसा हो जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसकी सेटिस्फेक्शन हो, जो शायर है वो भी अच्छी शायरी लिखे, और जब वो गाना सिंगर के पास आए तो जाहिर है कि वो जो सिंगर है जब वो उसको पता चलेगा कि म्यूजिक डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की और शायर ने इतनी मेहनत की, तो अब ये गाना जब मैं गाऊँ तो जितने मुझ में हुनर है, जितनी मुझ में बिसात है उसके मुताबिक मैं इस गाने को ज्यादा से ज्यादा अच्छा गाऊँ। ये नहीं है कि लोग मगरिब की तरफ ही भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ जो मशरिकी हमारे प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं वो पसंद किए जाते हैं, करती है, इसको पब्लिक एंजॉय करेगी। यहाँ बजाय आगे जाने के फिल्म भी शेक हो जा रही है। हम 7 पिक्चरों की स्टोरियाँ की होती है। मैं तो हर फिल्म में गाने गाती हूँ ना, तो ये भी होता है कि कुछ लोगों की ये पता नहीं मेरे खिलाफ ही हो जाएंगे सारे सच बोल रही हूँ। देखिए प्रोड्यूसर्स की विशेष होती है, ये देखो भाई वो लता जी का गाना ना, आगे आगे चले हम पीछे पीछे की इतनी तिवा, ये बनेगा नहीं बनाओ तो तुम्हारे गोटा तोड़ देंगे। जब प्रोड्यूसर ये कहता है और अभी वो जिससे कहा भी हमारे बच्चे हैं वो सबके बुरा ना बनाए, उनकी बुराई नहीं कर रही क्योंकि मैंने अपने गोटे प्यारे नहीं, तो इस तरह की बातें देखिए प्रोड्यूसर जब करेंगे पिक्चर कैसे चल सकती है। जब मैं 7 पिक्चरों की एक ही धुन गाती हूँ, एक गाने की मैं 7 पिक्चरों में वही धुन मेरी हो रही क्योंकि वो बदनसीबी से एक दफा वो हिट हो गई, तो दूसरे प्रोड्यूसर से कहा मेरी क्यों बना। चंद म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छे हैं लोग जिनको कि बुरा भला भी कहा गया है, पिक्चर भी छीन ली गई हैं बेचारों से कि भाई तुम नकल की, जिसमें ज्यादा नाम नज़ीर अली भी हैं, बजाज अख्तर भी हैं, मैंने कुछ नाम ले ही डाले, तो ऐसे नहीं ले डाले ना, ये लोग लड़ पड़ते जी नहीं हम तो नहीं नकल की करेंगे, हमें तो अपने बाप की इज्जत है, अब्दुल रशीद अख्तर के बेटे हैं, तो वो कहते हैं हम नहीं बनाएंगे। अच्छा नीली बताइए, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगा कर रही है, एक सीट मुझे काफी तंग नहीं आ रही। नहीं वो जैसे इन्होंने फरमाया कि जी हमारा कोई कसूर नहीं इसमें, मतलब जो बेसिक हमारा प्रॉब्लम है वो प्रोड्यूसर है कि जो मतलब आगे जिसने पैसा लगाना है फिल्म के लिए, जब वो यही कहते हैं कि मुझे इंडियन स्टोरी चाहिए, मुझे इंडियन गाने कॉपी करके दो, ये करो फला करो, तो हम तो मजबूर हैं, हमें तो पैसे लेके काम करना है, लेकिन हमारा अंदर तो हम पढ़ते रहते हैं अपने आप में कि जब जैसे ये गाती है तो ये मतलब मजबूरी के तहत गाती है, हालांकि लड़ती है कि जी हम क्यों गाएं, हम किसी कॉपी क्यों खुश होकर गाती है। पुराने गीतों में क्या खासियत है कि उन्हें हम जितनी बार सुने तो बार बार फिर सुनने को मन करता है, लेकिन नए गीतों में ये बात नहीं होती। पुराने गानों में क्या उसमें एक तो शायरी भी होती थी, अच्छी गानों के मतलब अच्छे निकलते थे, और गाने में क्लासिकल टचेस सुर अच्छे होते लगते थे, मेलोडी था जो भी बस वो एकदम जिस्म के अंदर घुस जाते थे जो भी सुनता आदमी। आजकल के गाने में वो चीज़ रस नहीं रहा जैसे पहले था। ये बात सबसे खराब चीज़ ये हो रही है कि अब लोग गजल समझते नहीं, लैंग्वेज बिल्कुल समझते नहीं। जैसे अपने यहाँ होता है कि संस्कृत आप कुछ गाइए तो संस्कृत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वैसे आप गजलों का हो गया है कि उर्दू अगर ज्यादा हो और मुश्किल शब्द हो तो वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। किया है ओपी नैयर के टाइम पे जितने भी गीत आपने गाए हैं उनसे कोई ऑसम म्यूजिक, मुझे उनका संगीत बहुत हमेशा से पसंद है। ये था उनको पहले जबान थे, उर्दू जानते थे तो वो गाने लेते थे बहुत अच्छा, मतलब लिखे हुए गाने बड़े अच्छे होते थे। एस एस बिहारी के गाने जो राइट यही वो जगह, यही वो फिजा है, यहीं पर कहीं आपसे हम मिले थे, या वो मैं शायद तुम्हारे लिए अजनबी हूँ मगर चांद तारे मुझे जान, हर गाना उनका ले जाइए आप कहाँ जाएंगे, मुझे सुल्तान तरीके का, तो गाने बड़े चुन चुन के लेते, तो इतना कुछ उठा लिया है कि अभी पता लगाना मुश्किल हो गया है कि किसका म्यूजिक है। तो ओरिजिनल क्या है आप मुझे बता दीजिए, ओरिजिनल गाना ये है मैं मान जाऊंगी। ओरिजिनल कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ओरिजिनल जिस दिन आएगा उस दिन हम मानेंगे कि हाँ ये कुछ नया आया, या तो इंग्लिश से होता है राइट, या तो आरडी बर्मन से होता है। ये गाने देखिए आप हर गाने में आप देख लीजिएगा, आप तो इतना बड़ा स्टेशन चलाती हैं, आप गाने सुनते जाइए तो आपको पता लगेगा कहाँ से कहाँ कौन उठाया, कौन किसने मारा। वो बात तो हमेशा सामने आ ही जाती है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप देख लीजिए आशा जी के गाने देख लीजिए, लता जी के, रफी जी के देख लीजिए, आज भी बजते हैं तो लोग पहचानते हैं उनको। आज से 3 साल पहले के गाने कोई भी सुना दीजिए किसी को याद नहीं होगा। तो वो मैं मेरी भी समझ नहीं आती है कि पहले गाने 40 साल 50 साल चल रहे हैं राइट, और आज के गाने 6 महीने के बाद क्यों नहीं लोग याद रखते, क्यों, ये मेरे को समझ नहीं है। मैं अपने छोटे से दिमाग से ये बता सकती हूँ कि हो सकता है कि आजकल के गानों में वो दम नहीं है उनके लिरिक्स में, क्योंकि अगर आप कोई भी पुराने गाना, आपने खुद ही कहा कि वो जब भी ओपी नैयर साहब या श्री रामचंद्र जब भी कोई म्यूजिक लेते थे, गाना लेते थे तो वो उसके लिरिक्स अच्छे होते थे, है ना। तो अगर लिरिक्स में दम है तो गाना याद रहेगा क्योंकि उसका आपके दिल के साथ तार मिलता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो आज के गानों का तार कैसे जुड़ेगा जब उसमें कोई तार ही नहीं है।